اعلان کیا. کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ رب العزت وہ تو رب ہے، اس کے بعد اگر کوئی ذات ہے جو سب سے بلند و بالا ہے اللہ کے بعد، تو محبوب پروردگار ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اور ان کے بعد اگر کوئی ذات مبارک ہے جو مقام بلند رکھتی ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں. کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہیں. رب کے بعد سب سے بلند و بالا مقام میرے آقا کا، اور ان کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں. آپ کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں میرے آقا ولادت فرمائے ہیں، ان کی اولادوں میں میرے آقا کا شمار ہے. اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں. اور یوسف علیہ السلام کی بھائی کی اولادوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں. اے بچوں، وہاں بیٹھو اپنی مسجد میں جا کر توجہ فرمائے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور ہم نے ابراہیم کو بادشاہی دکھا دی زمین و آسمان کی تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام بادشاہی دکھا دی. ساتوں زمین آپ پر منکشف فرما دیے گئے. آپ نے ان کو ملاحظہ فرما لیا ان کے اندر کیا کیا موجود ہے. ساتوں آسمان آپ پر منکشف فرما دیے گئے. آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ ان کے اندر کیا کیا موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ساتوں زمین دکھائی گئی تو آپ نے دیکھا کہ روئے زمین پر ایک شخص گناہ کر رہا تھا. آپ نے رب کی بارگاہ میں اس کے حق میں بددعا فرمائی، رب نے اس کو ہلاک فرما دیا. پتہ چلا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا علم عطا فرمایا کہ زمین میں کیا کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم نے بادشاہی دکھا دی ابراہیم کو زمین و آسمان کی تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے. آسمانوں میں کیا کیا تھا اللہ نے سب دکھا دیا، یہاں تک کہ آپ نے عرش تک ملاحظہ فرما لیا. تو مجھے بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال ہے تو تاجدار انبیاء کا حال کیا ہوگا، ان کے علم کا حال کیا ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سنت نہیں پڑھتے اس وجہ سے ہمارا اختلاف ہے، اس وجہ سے اختلاف نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ سلام نہیں پڑھتے اس وجہ سے ہمارا اختلاف ہے، اس وجہ سے ہمارا اختلاف نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں لوگ فاتحہ نہیں کراتے اس وجہ سے ہمارا اختلاف ہے، اس وجہ سے ہمارا اختلاف نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں وہ بزرگان دین کے مزار شریف پر نہیں جاتے، ہمارا اس وجہ سے اختلاف ہے، ہمارا اس وجہ سے اختلاف نہیں ہے. تم سلام نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھو، تم فاتحہ نہیں کرانا چاہتے نہ کرو، تم مزاروں پر نہیں جانا چاہتے نہ جاؤ، لیکن تم نے مصطفیٰ کو گالی بکی ہے اس وجہ سے ہمارا اختلاف ہے. تم نے میرے مصطفیٰ کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دی ہے اس وجہ سے ہمارا اختلاف ہے. تم نے میرے مصطفیٰ کے علم کو ناپا ہے. آؤ کتابوں کا حوالہ بھی دے دوں گا. تم نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جیسا محبوب پروردگار کو علم تھا معاذ اللہ ایسا گدھے گھوڑے جانوروں کو بھی علم ہے. اس وجہ سے ہمارا اختلاف ہے. کس وجہ سے اختلاف ہے؟ کہ جیسا محبوب پروردگار کو علم تھا ایسا گدھے گھوڑے جانوروں کو علم ہے. تم نے میرے نبی کو گالی نہیں بکی تو کیا بکی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان دکھا دیے اور تم محبوب پروردگار کے علم کو گدھے گھوڑوں سے ملا رہے ہو، اس وجہ سے ہمارا اختلاف ہے. اللہ نے تمام زمین و آسمان ابراہیم علیہ السلام پر منکشف فرما دیے. آپ کی پیدائش شہر بابل کے قریب قصبہ قونی میں ہوئی. طوفان نوح علیہ السلام کے 1709 سال بعد ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی.
नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो तूफान आया, 1709 साल बाद आपकी विलादत हुई। आप तारिख बिन नाखूर की औलाद हैं। सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से तकरीबन 2300 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। कितने? 2300 साल पहले सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। लेकिन कुरान फरमाता है, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़रा अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व क़ौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन। और याद करो जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूं। कुरान तो कह रहा है आपके बाप का नाम आज़र है, लेकिन किताबों से पता चलता है कि बाप को ही सिर्फ बाप नहीं कहा जाता, कभी कभी चचा को भी बाप कहा जाता है, कभी कभी मामू को भी बाप कहा जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर अपने चचा अब्बास को अबी का लक़ब इस्तेमाल किया, अबी कहा यानी अब्बू कहा चचा को। बहुत सारे दलाइल हैं जिससे पता चलता है कि आज़र आपका बाप नहीं था बल्कि आपका चचा था। आपके वालिद का नाम तारिख था और उनके वालिद का नाम नाखूर था। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, मुशरिक तो निरे नजिस है, नापाक हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस पाक है कि मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता रहा, पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता रहा। और आज़र कुफ्र पर डटा हुआ था और कुफ्र पर ही उसको मौत आई, तो पता चला वो आपका बाप नहीं था, क्योंकि पाक पुश्तों में मेरे नबी ने बयान फरमाया है। और आपके दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, भला वो पाक पुश्तों से क्यों नहीं होंगे? लिहाजा आपके वालिद गिरामी का नाम तारिख था और चचा आज़र था, लेकिन आपकी इसने परवरिश की थी, इसलिए कुरान ने इसी को बाप कहा है, आज़र कहा है। ये कौम खुली गुमराही में थी, बहुत सारे खुदा इनके पास थे, सुबह का खुदा अलग, दोपहर का खुदा अलग, शाम का खुदा अलग, रात का खुदा अलग, सूरज का खुदा अलग, चांद का खुदा अलग, पानी का खुदा अलग, रोजी का खुदा अलग, औलाद देने वाला खुदा अलग। बहुत सारे खुदा इन्होंने झूठे खुदा बना रखे थे, बहुत सारे बुत बना रखे थे, अपने हाथों से तराश कर झूठे खुदाओं को ये बना दिया करते थे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब होश संभाला तो लोगों को समझाना शुरू कर दिया, ए लोगों, तुम किसको खुदा बनाते हो? तवज्जो है आप हजरात की? कहो सुभान अल्लाह। और मिल मिल कर बैठो, मिल मिल कर बैठो। ये भी जगह खाली है, पीछे भी जगह खाली है, ताकि पीछे से आने वाले हजरात जगह पा लें। यहाँ भी आगे जगह खाली है, इधर भी मिलकर बैठे, यहाँ भी मिलकर बैठे। कहो सुभान अल्लाह। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते थे, ऐ लोगों, तुम किसको खुदा बनाते हो? जो ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना चलते हैं, ना फिरते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, ना जागते हैं। किसको खुदा बनाते हो? जिसकी जबान में बोल नहीं है, जिसके सुनने की ताकत नहीं है, जिसके पकड़ने की ताकत नहीं है, जिसके चलने की ताकत नहीं है। किसको खुदा बनाते हो? जो तुम्हें जबान नहीं दे सकता, बोल नहीं दे सकता, ज़हन नहीं दे सकता, दिल नहीं दे सकता, जब तुम्हें जिस्म नहीं दे सकता, औलाद नहीं दे सकता, शोहरत नहीं दे सकता, जो खुद की इज्जत नहीं कर सकता, जो खुद की जान नहीं बचा सकता। ए लोगों, तुम उसको खुदा बनाते हो। बड़े ही प्यारे अंदाज में लोगों को समझाया करते थे, लेकिन लोग हमेशा आपकी मुखालिफत करते थे और कहते थे, इब्राहिम नाम का एक नौजवान है जो हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, जो हमारे खुदाओं को अपना दुश्मन समझता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे इलाके में अकेले हैं, तने तनहा हैं, जो रब की रबूबियत का ऐलान कर रहे हैं, वहदहू ला शरीक के बारे में लोगों को बता रहे हैं, और पूरी कौम आपकी मुखालिफत कर रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते थे, वतल्लाहि लअकीदन्ना सनामकुम बअद अन तुवल्लू मुदबिरीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते थे, मुझे कसम है अपने रब की, मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूंगा जब तुम पीठ फेर जाओगे। उस कौम का एक मेला लगा करता था, लोगों को यह बात मालूम थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे बुतों को बुरा कहा करते हैं, हमारे खुदाओं को झूठा खुदा कहा करते हैं। ये नौजवान है जो हमारे खुदाओं की मुखालिफत किया करता है।
जब एक दिन वो आया कि उस कौम का साल में मेला लगता था, वो आबादी के बाहर चले जाते थे और मेले में जाकर खूब रंग रलियां करते थे, खेल कूद तमाशा लगाया करते थे, औरतों को नचाया करते थे, शराब नोशी हुआ करती थी, जिनाकारी के अड्डे लगा करते थे, जुआ खेलने के अड्डे लगा करते थे। वो कौम उस मेले में जाया करती थी और उनका मामूल ये था कि जब वो सुबह को अपने मेले जाया करते थे तो उन्होंने एक बुतखाना बना रखा था जो बहुत बड़ा था। उसके अंदर बहुत सारे बुत मौजूद थे, तरह तरह के मौजूद थे, तरह तरह के किस्म किस्म के झूठे खुदा उन्होंने बना रखे थे। सुबह के वक्त जब वो मेले जाते थे, तरह तरह के लजीज खाने, तरह तरह के पकवान और पीने की अशियां बुतखाने में बुतों के आगे रख कर जाते थे और इस नियत से रख कर जाते थे कि आने के बाद में इन पकवानों को तकसीम किया जाएगा, तबर्रुक के तौर पर बांटा जाएगा, फिर आपस में लुत्फ लेकर खाया जाएगा। वो लोग पकवान रखकर चले जाते थे। उस साल जब मेला आया, लोगों ने मशवरा किया कि हमारी आबादी के अंदर एक जवान है जिसका नाम इब्राहिम है, जो आजर की औलाद है। उसका हाल ये है, हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, हमारे माबूदों को वो मुखालिफत करता है और दुश्मन समझता है। चलो उसको साथ लेकर के चलते हैं। वो कहता है हम तुम्हारे खुदाओं को नुकसान पहुंचाएंगे तब जब तुम पीठ फेर जाओगे। कहीं ऐसा ना हो हम मेले चले जाएं, इब्राहिम को मौका मिल जाए और हमारे खुदाओं को तोड़ फोड़ कर डाल दे। चलो उसके पास चलते हैं, उससे मेले में साथ लेकर के चलते हैं, कोई खतरा हमारे खुदाओं को ना रहेगा। कैसी कौम थी, कैसे अहमक लोग थे, अब भी नहीं समझ रहे हैं कि जो खुदा अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, भला वो किसी की जान की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। पहुंच गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, कहने लगे इब्राहिम हम चाहते हैं कि तुम इस साल हमारे साथ मेले में चलो, देखो हमारे मेले में कितना लुत्फ आता है, कैसी रंगरलियां होती हैं, कैसा तमाशा होता है, कैसी अय्याशी होती है, कितनी मौज आती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की जानिब निगाह उठाई और पढ़ा और कुरान ने फरमाया फनज़रा नज़रतन फिन नुजूम फक़ाला इन्नी सक़ीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे निगाह उठाई जैसे उस जमाने में नुजूमी उठाया करते थे। उस जमाने में लोग तारों का हिसाब लगा करके सफर किया करते थे। उस जमाने में लोग इन तारों को जो आसमान में चमकते और दमकते हैं, इनका हिसाब लगा करके लोग जिंदगी के फैसले लिया करते थे। वो लोग सोचने लगे कि ना जाने ये आसमान की जानिब क्या देख रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ लोगों मैं बीमार होने वाला हूं, तुम्हारे साथ मेले में नहीं जा सकता। उन लोगों ने सोचा शायद इन्होंने हिसाब सितारों से लगा लिया है, इसलिए कह रहे हैं मैं बीमार होने वाला हूं, चलो इन्हें छोड़ देते हैं, हम मेले चलते हैं। वो तरह तरह के पकवान अपने झूठे खुदाओं के आगे रखने के बाद में मेले में चले गए हैं। खूब अय्याशी हो रही है, खूब मक्कारी हो रही है, खूब रंगरलियां हो रही हैं। शाम के वक्त जब लौटे हैं, उधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मौके को गनीमत समझा, एक बसूला उठा लिया। उठाने के बाद में बुतखाने में पहुंच गए और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया और फरमाया अला ताकुलून, तुम्हारे आगे खाने रखे हैं, खाते क्यों नहीं हो। मालकुम ला तंतिकून, और तुम बोल भी नहीं रहे हो। ना वो बोलते थे ना खाते थे, वो तो हाथों की बेजान मूर्तियां थी, भला वो कैसे बोल सकते थे, वो अपनी मदद कैसे कर सकते थे। आपने बसूला चलाना शुरू किया है, एक के बाद एक सबको टुकड़े टुकड़े करके चूरा कर दिया है, सिवाय एक के जो सबसे बड़ा था उसको छोड़ दिया। और इसलिए कि शायद कौम लौट कर आएगी तो कहीं ये ना कहने लगे कि हमें बताने के लिए कोई खुदा बाकी ना रहा था, वरना हम अपने खुदा से पूछ लेते। आपने एक को छोड़ दिया कि कौम आएगी तो इससे पूछ लेगी, अगर ना बता पाएगा तो मैं फिर से दलील कायम कर दूंगा कि जो अपने खुदाओं के बारे में, अपने साथियों के बारे में नहीं बता सकता, वो खुदा कैसे हो सकता है। आपने उसका कुछ हिस्सा तोड़ दिया और बसूला उसके कांधे पर रख दिया। शाम को जब कौम लौट करके आई, देखा बुतखाने के अंदर जितने उनके खुदा थे सब तहसो नहस हो गए हैं, सब के बल जमीन पर पड़े हुए हैं, चूरा चूरा हो गया है, सबके हाथ बाजू काट दिए गए हैं, सिवाय एक के। लोगों में बातचीत होने लगी, ये किसने किया है,
है, ये किसने किया है? एक बोला मैं जानता हूं इब्राहिम नाम का एक नौजवान है जो हमारे खुदाओं की मुखालिफत करता है, जो हमारे खुदाओं को अपना दुश्मन समझता है, जरूर उसने किया होगा। लोग दौड़ पड़े, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ कर ले आए और कहने लगे बताओ इब्राहिम, क्या तुमने हमारे खुदाओं को नुकसान पहुंचाया है? क्या तुमने हमारे खुदाओं को जेरे जमीन कर दिया है? क्या तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ दिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे ए लोगों, तुम हम भी उन खुदाओं की बात कर रहे हो जो अपनी जान की हिफाजत ना कर सके हैं, जो अपनी मदद ना कर सके हैं, जिनको कोई तोड़ कर चला गया तो टूट गए हैं, और इनको मैंने नहीं तोड़ा, शायद इस बड़े वाले ने तोड़ा होगा, इससे पूछ लो। लोग कहने लगे कैसे बोलेगा, ये तो पत्थर का है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे जब ये बोल नहीं सकता, जब ये मदद नहीं कर सकता, ये खुदा कैसे हो सकता है? लोगों, खुदा वो है जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हें जबान दी है, जिसने तुम्हें आंखें दी है, जिसने तुम्हें कान दिए हैं, जिसने तुम्हें दिल में धड़कनें अता फरमाई है, जिसने तुम्हें अक्ल सलीम अता फरमाई है, जिसने तुम्हें पकड़ने को बाजू अता फरमाए हैं, जिसने तुम्हें चलने को ये टांगे अता फरमाई है, जिसने तुम्हें खाने की चीजें अता फरमाई है, पीने की अशियां अता फरमाई है, चलने को जमीन अता फरमाई है, शामियाना आसमान का लगाया है, बारिश को नुज़ूल फरमाया है, जिसने इन चरिंद परिंदों से जमीन को सजाया है, जिसने दरख्तों को उगाया है, दरख्तों पर फलों को लगाया है, वो रब है। ये झूठे खुदा हैं, किस बहकावे में आ गए हो? एक बार को तो वो कौम सोचने लगी कि नौजवान सही कह रहा है, सही कह रहा है, सोच में पड़ गए, लेकिन फिर शैतान ने चाल चली तो कहने लगे ए इब्राहिम, हमसे ये ना पूछो हमारे खुदा किसी काम के हैं कि नहीं है, हम बस इतना जानते हैं हमारे आबा अजदाद इन्हीं की पूजा करते थे, इन्हीं को खुदा मानते थे, इसलिए हम भी खुदा मानते हैं। जरूर तुमने ही हमारे खुदाओं को नुकसान पहुंचाया है, अब तुम्हें सजा दी जाएगी, अब तुम्हें सताया जाएगा, अब तुम पर जुल्म किया जाएगा, इसलिए कि तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ दिया है। लोगों ने सजा सोचनी शुरू कर दी, तो उसी दौरान में फारिस के देहात का रहने वाला एक शख्स था जिसका नाम इकरार था। इसने मशवरा दिया ए लोगों, ऐसा करो कि इब्राहिम को जलती हुई आग में डाल दिया जाए, एक आग शोला जन की जाए, एक आग तैयार की जाए और उस आग में इब्राहिम को डाल दिया जाए। लोगों को यह मशवरा पसंद आ गया, ऐलान हो गया 40 दिन तक लकड़ियां जमा की जाएंगी। कितने दिन तक? 40 दिन तक लकड़ियां जमा की जाएंगी। फारिस के देहातों का रहने वाला ये शख्स है जिसने आग में डालने का मशवरा दिया है। सुनो, ये शरीयत का मसाला है कि आग की सजा सिवाय अल्लाह के किसी के लिए जायज नहीं, सिवाय अल्लाह के किसी के लिए जायज नहीं कि आग की सजा दी जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत किए के बदले में उसको जहन्नम में डालेगा। जिसने बुरा किया होगा वो आग अल्लाह सजा देगा, किसी को जायज नहीं आग की सजा दे। लेकिन लोगों ने आग के लिए लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी। हाल ये था कि अगर कोई बूढ़ी बीमार होती तो कहती काश मैं शिफा पा जाऊं तो मैं भी लकड़ियां जमा करके लाऊं ताकि मैं भी इब्राहिम के चलने में काम आ सकूं, क्योंकि उसने हमारे खुदाओं को तोड़ दिया है। बूढ़े बच्चे जवान सब औरतें आदमी सब लकड़ियां जमा कर रहे हैं। 40 दिन तक मुसलसल लकड़ियां जमा की गई है, दीवार खींच दी गई है और इतनी ऊंची दीवार बनाई गई है जिसकी ऊंचाई 45 फीट थी, जिसकी चौड़ाई 30 फीट थी, जिसकी लंबाई जमीन पर 45 फीट थी। उसमें आग शोला जन कर दी गई है। 40 दिन तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों में जकड़ा हुआ है, आग जली है, ऐसे शोले उठे हैं कि आसमान में फजाओं में परिंदा भी उसके ऊपर से गुजरना मुनासिब नहीं समझ रहा है। खतरनाक आग जला दी गई है। कौम नमरूद दूर खड़े हैं और सोच रहे हैं अब इब्राहिम को आग तक कैसे पहुंचाया जाए। आग तो दूर दूर तक लपटे दे रही है, करीब जाना दुश्वार है। कैसे आग तक इस
नौजवान को पहुंचाया जाए। शैतान ने मशवरा दिया है, ए लोगों मंजनीक तैयार कर लो। मंजनीक क्या होती है मैं आपको बताऊं। सबसे पहली मंजनीक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए तैयार हुई है, और ये मंजनीक वो चीज होती है कि बाद में लोगों ने इसको जंगों में इस्तेमाल किया है, और मंजनीक में पत्थर के बड़े बड़े गोले रख करके दुश्मन की तरफ फेंके जाया करते थे। आपके समझ में आ गया होगा मंजनीक किसको कहते हैं। मंजनीक तैयार हुई है। सबसे पहली सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों में जकड़ करके मंजनीक में बिठा दिया गया है। तमाम रूए जमीन पर सिवाय जिन्नो इंसान के सब चीख उठे हैं, रब ये क्या हो रहा है। रूए जमीन पर एक ही तेरा बंदा तेरा नाम लेवा है, उसको तेरे बंदे आग में जलाना चाहते हैं, उसको तेरे बंदे आग के हवाले करना चाहते हैं। तमाम मखलूक रब की बारगाह में इंतजाएं कर रही है, तमाम फरिश्ते रब की बारगाह में पुकार उठे हैं, मौला इब्राहिम को आग में जलाया जा रहा है, मौला हमें इजाजत दे। कौन पूछ रहे हैं? फरिश्ते। कौन? फरिश्ते। मौला हमको इजाजत दे। हवाओं पर मुकर्रर फरिश्ता कह रहा है, मौला मुझको इजाजत दे, ऐसी हवा चला दूंगा आग खत्म हो जाएगी, उड़ जाएगी। पानी पर मुकर्रर फरिश्ता अर्ज कर रहा है, मौला मुझे इजाजत दे, इतनी बारिश होगी आग खत्म हो जाएगी। रब ने फरमाया नहीं, अगर मेरे खलील को कोई हाजत होगी तो जाओ, तुम चले जाओ, उससे मालूम कर लो, जाओ और मालूम कर लो। फरिश्ते आए, अल्लाह के खलील अगर कोई हाजत है तो बताएं, हम आपकी इमदाद के लिए आए हैं। मैं हवाओं पर मुकर्रर हूं, मैं पानी पर मुकर्रर हूं, बताएं। मैं मौसम बदलने पर मुकर्रर हूं, ऐसा मौसम बदल दूंगा खत्म, ऐसी हवा चला दूंगा खत्म, ऐसी बारिश कर दूंगा खत्म। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नहीं, मैं तो रब की बारगाह में भी सवाल नहीं करना चाहता, इसलिए कि मेरा रब मेरा हाल जानता है। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, मेरा रब मेरे लिए काफी और बेहतर कारसाज है। मैं सवाल नहीं करना चाहता। आपको रस्सियों में जकड़कर आग के हवाले किया गया, और जैसे ही मंजनीक से छोड़ा गया, अल्लाह ने आपको फरमाया, कूनू बरदौ व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी और सलामती हो जा मेरे इब्राहिम पर। रिवायत में आता है, जिस दिन आग को ठंडी और सलामती का हुक्म दिया गया, रूए जमीन पर कोई आग ऐसी मौजूद न थी जो ठंडी और सलामती न हो गई थी, क्योंकि हुक्म रब का था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को साए पर मुकर्रर एक फरिश्ते ने बाजुओं से पकड़ा और आग के अंदर ले गया। आग ने जलाया, आग ने जलाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं, उन रस्सियों को जिसमें आपको जकड़ा गया था, और फरिश्ते ने आग के अंदर आपको उस जगह ले जाकर बिठा दिया जहां गुलाब, नरगिस और चमेली के फूलों का एक बाग मौजूद था, वहां जाकर बिठा दिया। शायर ने कहा, आज भी होगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, कहो सुभान अल्लाह। आज भी होगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। जब रब बचाना चाहे तो कौन मार सकता है। जिंदगी देने का मालिक अल्लाह है, उसी का हक है जिंदगी पर, उसी का हक है हमारी औलादों पर, उसी का हक है हमारे माल पर, उसी का हक है हमारी इज्जत पर, सब उसी की जानिब से है। दुनिया वाले चाहे तो किसी को एक लुकमा भी न दें। अगर रिस्क के मालिक दुनिया के लोग होते तो किसी के हलक से खाना ना उतरने देते। अगर पानी के मालिक दुनिया वाले होते तो किसी के हलक से पानी का एक कतरा ना उतरने देते। लेकिन मेरा रब फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा। अल्लाह फरमाता है, कोई जान ऐसी नहीं जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर ना ले रखा हो। हर किसी को खिलाता, ऊंचा बोलो, सबको खिलाता अल्लाह है, सबको पिलाता अल्लाह है, औलाद देने वाला रब है, इज्जत देने वाला रब है। तुम परेशान हो, तुम्हारे रिश्तेदार तुमको छोड़ दे, पड़ोसी छोड़ दे, अजीज व अकारिब छोड़ दे, बीवी बच्चे छोड़ दे, परेशान ना होना। अल्लाह बेहतरीन दोस्त है, सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह है, सबसे बेहतरीन काम बनाने वाला अल्लाह है। वो तुम्हारा मददगार है। जहां तुम्हें कोई ना मिले रब को पुकार लेना, जहां कोई रास्ता ना हो रब को पुकार लेना, जहां रास्ते बंद हो जाते अल्लाह वहां रास्ता खोल देता है।
کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ حج کا مہینہ آ رہا ہے، ایمان والے جن کے پاس طاقت تھی، وسعت تھی، اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنا وقت بھی خرچ کیا اور چل دیے۔ وقت ملے گا آپ کو سن